حدیث مبارکہ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ سوال نمبر 1، سردیوں کا قومی سالن کون سا ہے؟ آپشن اے آلو گوشت، آپشن بی ساگ، آپشن سی دال گوشت، آپشن ڈی دیسی مرغا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ساگ۔ سوال نمبر 2، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ صحیح جواب ہے صدقہ عربی زبان کا انکار ہے۔ اردو میں صدقہ کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جبکہ عربی میں خیرات ای خیر کی جمع ہے جس کا معنی بھلائی ہے۔ البتہ اردو میں مالی مدد کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جیسے جب فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو یہ خیرات کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی اردو کے لحاظ سے خیرات ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، صدقہ اور خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ آپشن اے اللہ تعالیٰ کی رضا، آپشن بی لوگوں کو دکھا کے، آپشن سی لوگوں سے چھپا کے، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اخلاص کے ساتھ جو محمل کیا جائے اللہ کی رحمت سے اس میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ رد ہے، اس میں قبولیت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نے پیسے دیے تو ثواب کی امید نہیں ہے۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی لوگ پیسے دیتے ہیں، اگر لوگ دیکھ نہیں پاتے تو انہیں سناتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اور اتنا اتنا دیا ہے۔ اگر سنانے میں یہ نیت ہے کہ سامنے والے کو بھی رغبت ملے تو یہ نیت اچھی ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن صرف اس نیت سے بتانا کہ یہ مجھے سخی بولیں دلیر بولیں تو یہ رہا ہے، اس میں ثواب کی امید نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں غیر کا عمل دخل نہ ہو تو اس میں ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ اخلاص کی اور بھی بہت ساری تعریفیں ہیں، البتہ اگر کسی کام میں غیر کا عمل دخل اللہ کی رضا کے لیے بھی شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک بندے کی ہم نے اس لیے مدد کی تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے مجھے ثواب ملے تو یہ بھی اللہ کی رضا والا کام ہو گیا، حالانکہ اس میں بندے کی رضا بھی شامل ہے، لیکن اس بندے کی رضا سے اصل مقصد اور اس پر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہو گیا۔ سوال نمبر 4، کیا صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے؟ نیز جب بندوں کی عمر مقرر ہے تو یہ عمر بڑھانا کیوں نکر مکن ہو سکتا ہے؟ آپشن اے نہیں بڑھتی، آپشن بی جی بڑھتی ہے، آپشن سی ممکن نہیں ہے، آپشن ڈی باطل عقیدہ ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بڑھتی ہے۔ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بندہ کتنی عمر میں فوت ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہوگا تو ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام قدرت ہے، لیکن اللہ پاک کے علم میں ہونے کا اللہ پاک کی مشیت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھلا کر بیٹھ جائے، بیمار ہو تو علاج نہ کروائے اور سو ہے کہ صحت ملتی ہوگی تو مل جائے گی۔ ویسے بھی خطا تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ بات سن کر دوا نہیں چھوڑے گا، دوا سب ہی کھائیں گے، حالانکہ جب موت لکھی جا چکی ہے تو کیا دوائی کھانے سے موت مل جائے گی؟ مگر ہم اگر دوائی نہیں کھائیں گے اور اس بیماری سے موت واقع ہو گئی تو یہ خود کشی کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ جس رب نے بیماری کو پیدا کیا ہے اس سے شفا کے لیے دوا کا حکم بھی اس پاک پروردگار نے ہمیں دیا ہے کہ کس سے اسی طرح بعض روایتوں میں مختلف اعمال کی برکت بیان ہوتی ہے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور کس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 560 پر مسئلہ نمبر 6 حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں زیوتی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، عقائد اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن اے 1، آپشن بی 3، آپشن سی 5، آپشن ڈی 7۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 5۔ سوال نمبر 6، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے اللہ پر ایمان، آپشن بی رسولوں پر ایمان، آپشن سی کتابوں پر ایمان، آپشن ڈی قیامت پر ایمان۔
सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लाह पर ईमान। सवाल नंबर 7। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक नाक के बाल उखाड़ने से क्या नुकसान होता है? ऑप्शन ए मर्दाना कमजोरी होती है। ऑप्शन बी मौत वाक़या हो सकती है। ऑप्शन सी हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। ऑप्शन डी फालिज होने का अंदेशा। सही जवाब है। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक नाक के बाल सांस लेने वाली हवा को फिल्टर करते हैं और हमें हवा में फैलने वाले वायरस, बैक्टीरिया और दिमाग में घने वाले दीगर जरासीमों के जरिए इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर वो जरासीम दिमाग तक रसाई हासिल कर लें तो इससे न सिर्फ दिमाग बल्कि रीढ़ की हड्डी भी मुतासिर होने का खदशा होता है और बाज़ औक़ात वो जरासीम इंसान की मौत का सबब भी बन सकते हैं। लिहाजा नाक के बालों को उखाड़ने की बजाय अगर ज़रूरत महसूस हो तो सिर्फ ऊपर से काट लिया जाए। सवाल नंबर 8। क़यामत के अलावा और कौन से मजहब का मानना है कि क़यामत से पहले सुवर फूंका जाएगा? ऑप्शन ए यहूदियों, ऑप्शन बी ईसाइयों, ऑप्शन सी मुश्रिकों, ऑप्शन डी साबैन। सही जवाब है ऑप्शन बी ईसाइयों। सवाल नंबर 9। यसरब किसका पुराना नाम था? ऑप्शन ए मक्का शरीफ का, ऑप्शन बी मदीना शरीफ का, ऑप्शन सी बैत अल मक़दस का, ऑप्शन डी मालूम नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी मदीना शरीफ का। सवाल नंबर 10। कौन सी सूरत 10 दफा पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देता है? ऑप्शन ए सूरत अल फातिहा, ऑप्शन बी सूरत यासीन, ऑप्शन सी सूरत रहमान, ऑप्शन डी सूरत इखलास। सही जवाब है सूरा इखलास। 10 दफा चाहती है अल्लाह ताला जन्नत में घर बना रहा है, यारी इनके छोटिए मुझे एक पर लाने पर भी जानते में घर बनाने का वदा है। इब्न माजा। फिर अगर कोई दिन रात में 12 रकात नकल हुआ करे तब भी अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में घर जाने का दावा है। सवाल नंबर 11। हज़रत मोहम्मद के फरमान के मुताबिक जो शख्स नशा करता है अल्लाह ताला इसको पिलाएगा। ऑप्शन ए दूध पिलाएगा, ऑप्शन बी शहद पिलाएगा, ऑप्शन सी शराब पिलाएगा, ऑप्शन डी 2 खूहे का पसीना। सही जवाब है ऑप्शन डी 2 खूहे का पसीना। सवाल नंबर 12। 15 शाबान को मर्दों की रूहें किस वक्त घर आती हैं और क्या कहती हैं और उसकी असल हकीकत क्या है? ऑप्शन ए किसी भी वक्त, ऑप्शन बी मगरिब के वक्त, ऑप्शन सी तहज्जुद के वक्त, ऑप्शन डी फातिहा के वक्त। सही जवाब है अज़मत वाले दिनों और रातों अनमोल शब बुराक़ में फौत शदा मुसलमानों की में अपने घरों पर अगर सदका और गैरत का सवाल करती है। इस बारे में इतनी हज़रत अलाम अक्ल मिक़दार मरहला अलैहि अरबी अरवावात के हवाले से एक रवायत कुल फरमाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, जब ईद अजे आगोरे का दिन अशब बरात होती है, अमवात फौत शदा अफराद की जद में अगर अपने घरों के दरवाज़ों पर खड़ी होती और कहती है कोई के हमें याद करे, है कोई के हम पर तरस खाए, है कोई के हमारी गुर्बत की याद दिलाए। हमारे करीबी रिश्तेदार और दोस्त व अहबाब जैसे ही फौत होकर आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल होते हैं तो आंखों से उनके गायब और निहा होने की वजह से रफ्ता रफ्ता हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें वो हमें नहीं भूलते और हमारी तरफ से दुआए मग़फ़िरत और इसाल सवाब के मुंतज़िर रहते हैं। तो जिस तरह हम अपने वालिदैन, औलाद, बहन, भाई, अजीज़ व अकारिब और दोस्त व अहबाब वगैरह की दुनियावी ज़िंदगी में उन पर अपना माल खर्च करते हैं, उन्हें अपना वक्त और तवज्जो देकर उनकी दिलजुई का सामान करते हैं, यूँ हमें चाहिए कि उनके दानिया से चले जाने के बाद भी उन्हें अपनी दुआ, सदका और खैरात और नेकियों पर हासिल होने वाले अजर और सवाब में शरीक करते रहा करें, खुसूसन बड़े दिनों में। सवाल नंबर 13। हज़रत मोहम्मद का हज़रत हिफ्सा से निकाह कब हुआ? ऑप्शन ए 1 हिजरी, ऑप्शन बी 2 हिजरी, ऑप्शन सी 3 हिजरी, ऑप्शन डी 4 हिजरी।
सही जवाब है ऑप्शन सी 3 हिजरी। सवाल नंबर 14। पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस मस्जिद में कायम की गई थी? ऑप्शन ए मस्जिद अल हराम, ऑप्शन बी मस्जिद नबवी, ऑप्शन सी मस्जिद आयशा, ऑप्शन डी मस्जिद कबा। सही जवाब है ऑप्शन बी मस्जिद नबवी। अकवाल ज़र्री। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, तकलीफ में हमेशा सब से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। सवाल नंबर 15। तमाम मुसलमानों में कौन सी चीज़ मुश्तरक है? ऑप्शन ए लिबास, ऑप्शन बी ज़बान, ऑप्शन सी आदतें, ऑप्शन डी इस्लाम। सही जवाब है ऑप्शन डी इस्लाम। सवाल नंबर 16। हज़रत मोहम्मद आमिर अल-फैल की किस साल में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए पहले साल, ऑप्शन बी दूसरे साल, ऑप्शन सी तीसरे साल, ऑप्शन डी चौथे साल। सही जवाब है ऑप्शन ए पहले साल। सवाल नंबर 17। लफ्ज़ आदम किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए इब्रानी ज़बान, ऑप्शन बी शामी ज़बान, ऑप्शन सी फारसी ज़बान, ऑप्शन डी अरबी ज़बान। सही जवाब है ऑप्शन ए इब्रानी ज़बान। सवाल नंबर 18। हज़रत इसहाक किसके नबी थे? ऑप्शन ए ईसाइयों के, ऑप्शन बी काफिरों के, ऑप्शन सी यहूदियों के, ऑप्शन डी मुसलमानों के। सही जवाब है ऑप्शन सी यहूदियों के। सवाल नंबर 19। बेहतरीन खाने की चीज कौन सी है जिसका कुरान पाक में जिक्र है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी दूध। सही जवाब है ऑप्शन बी शहद। सवाल नंबर 20। किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? ऑप्शन ए बीवी फौत होने के बाद, ऑप्शन बी दूसरी शादी के बाद, ऑप्शन सी 3 बेटियां होने के बाद, ऑप्शन डी 50 साल की उम्र के बाद। सही जवाब है मंद नाम अहमद और मसनद और आली में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना कि बच्चे जब तक बालिग नहीं होता इसके मुकम्मल इसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा तहम्मुल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो तुम उसके लिए जारी हो जाता है, और वो फरिश्ते जो उनके साथ रहने जाते हैं जिनको कम दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत फहम होना है। जब हालत इस्लाम में 45 साल की उम्र को बताया जाता है तो अल्लाह ताला इसको 3 किस्म की तैयारियों जुनून, जुज़ाम और बरस इसे महफूज कर देता है। जब रुजमा की तौफीक दे देता है। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले इससे मोहब्बत करने 50 साल की उम्र को पहनता है तो मुन्ह ताला इसका हिसाब लगा कर देता है। जब 7 साल को पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ होता है तो अल्लाह ताला इसकी नेकियों को लिखता है और बुराइयों को मुआफ फरमा देता है। मगर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला इसके सब इनके पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है और उसको अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक देता है और उसकी शफात कबूल फरमाता है, और उसका लक़ब अमीन अल्लाह और अमीर अल्लाह फी अल-अर्ज़ यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में बीच कर उमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह मुअम्मर गुजारता है, और जब इस ज़्यादा उम्र को जाता है तो उसके तमाम अमाल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो सेहत और कुव्वत के ज़माने में किया कर रहा थी, और अगर की उम्र साल इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो नहीं लिखा जाए। सवाल नंबर 21। ज्यादा सोते रहना उनमें से इंसान की कौन सी चीज कमजोर कर देता है? ऑप्शन ए आंखों को, ऑप्शन बी जिस्म को, ऑप्शन सी दिल को, ऑप्शन डी याददाश्त को। सही जवाब है ऑप्शन डी याददाश्त को।
सवाल नंबर 22। नमाज में कितनी बार जाने से नमाज टूट जाती है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 4 बार। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 बार। सवाल नंबर 23। कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोने लग जाता है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी अलिफालू, ऑप्शन डी बली। सही जवाब है ऑप्शन ए कुत्ता। सवाल नंबर 24। सदका किसे कहते हैं? ऑप्शन ए काला बकरा ज़ब्ह करने को, ऑप्शन बी काला मुर्गा ज़ब्ह करने को, ऑप्शन सी सर से कोई चीज वारने को, ऑप्शन डी मालूम नहीं। सही जवाब है। सदक़े के हवाले से कई लोग ये समझते हैं कि काले बकरे अकाले मरने पर हाथ फिरवाकर कोई भी चीज 7 बार सर पर से घुमा कर दी जाए तो वही सदका है। इस तरह के अंदाज में कोई चीज देना सदक़े के साथ साथ तो लगा भी है। दरअसल हर वो चीज जो अल्लाह पाक की रजा हासिल करने के लिए इसकी राह में दी जाए, किसी गरीब की मदद की जाए या बतौर चंदा दी जाए, वो सब सदका है। सवाल नंबर 25। लड़कियों का कौन सा अमल जिन्नात को उनका आशिक बनाता है? ऑप्शन ए बेपर्दा रहना, ऑप्शन बी ज्यादा हंसना, ऑप्शन सी ज्यादा गुस्सा करना, ऑप्शन डी ज्यादा खाना। सही जवाब है ऑप्शन ए बेपर्दा रहना। सवाल नंबर 26। 6 महीने से ज्यादा अगर कोई तस्बीह पढ़ी जाए तो इंसान के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए पागल हो जाता है, ऑप्शन बी वफात हो जाती है, ऑप्शन सी बीमार हो जाता है, ऑप्शन डी मजेदार ताकतवर होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी मजीद ताकतवर होता है। जो इंसान तवील अरसा तक मिसाल के तौर पर दिव्या 3 साल तक तस्बीह करता है तो फिर उसकी तस्बीहात पावरफुल हो जाती है। अगर कोई शख्स 3-4 तस्बीहात रोजाने करता है 3-4 साल से, तो वो तस्बीहात इसके अर्द गिर्द नूर के हिफाजती पर बन जाती है। इंसान को इन तस्बीहात का आसरा हो जाता है। इंसान की बाईं हत्ता तबाह नजर ये कि ज्यादा तस्बीहात करने वाले इंसान की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है और वो इंसान कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहता। हो सकता है इंसान पर कोई ना कोई प्रीना नहीं आ जाए, मगर वो इंसान अल्लाह की मदद से उन परेशानियों का सामना कर लेगा, लेकिन वो कभी भी पागलपन अपरेशन का शिकार नहीं होगा इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज है जो बली के पेशाब से बनाई जाती है? ऑप्शन ए चाय की पत्ती, ऑप्शन बी कोल्ड ड्रिंक, ऑप्शन सी संगरट, ऑप्शन डी काफी। सही जवाब है ऑप्शन डी काफी। अल्वनीशिया में एक मखसूस किस्म की काफी पीलोइक कहलाती है, जो कि दरअसल मुश्क बुलाओ नामी जानवर के फुजले पेशाब से निकाले के काफी के बीजों से बनाई जाती है। मुश्क बुलाओ एक ऐसा जानवर है जिसका निचला बदन हिली जैसा और मुंह न्योले जैसा है, जो कि घने जंगलों में पाया जाता है। इंडोनेशिया की इस मकबूल काफी का एक कप तकरीबन 5,000 रुपए में मिलता है। ये जानवर काफी के बेहतरीन पक्के हुए बीजों को निगल लेते हैं, लेकिन ये बीज उनके निज़ाम इंहिज़ाम में हज़म नहीं होते, बल्कि इनमें मखसूस खामरे शामिल होने के बाद जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। मुलाजिमीन उनका तमाम फुजला इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें से काफी के बीज निकाल कर उन्हें धो लेते हैं, फिर उन बीजों को पेस कर उनसे काफी तैयार की जाती है। हदीस मुबारका। हज़रत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार रहे इसको बख्श दिया जाता है।